Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today the subject of our study is commonly used punctuations. Now as we all know that punctuations are literally a very important element of communication, right? And particularly if I say written communication. So it would be difficult to understand whatever is written, whatever is spoken without the use of punctuation. So that's why I have picked up this topic for you people. So, what we'll be studying today is firstly what are punctuations, right? We need to know that what punctuations literally mean. So, these are nothing but they are a roadmap to help me and you uh, to understand whatever is written and take us through the twists and turns of written communication. Yes, as I already told, that it is the most useful element in any written communication. So, without punctuations, it would be very difficult for us to know the meaning of what a sentence is implying. For example, a very short example is written here: let's eat mom. So, there no punctuation is used. Now, what this sentence will mean if we don't use any punctuation is हम mom को खाते हैं. ठीक है? Let's eat mom. So, how funny is this and how insane is this sentence, right? But when we insert comma, so this sentence means let's eat mom. So, comma signifies a small pause after the word eat, and this means कि चलिए मम्मी खाना खाते हैं. ठीक है? So, this is how punctuation creates a difference in any of these sentence, right? So, moving forward, so we are going to discuss the 8 commonly used punctuations for today, which will include full stop, comma, colon and semicolon, question mark, exclamation mark, quotation mark, and last but not the least apostrophe. या तो इनमें से काफ़ी सारे सिंपल हैं, इजी हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया डालने की कोशिश की है और ऐसी चीज़ें डाली हैं जो हम आम मतलब दिनों में यूज़ करते वक्त पंक्चुएशंस को नोटिस नहीं करते हैं, राइट? So maybe you will find it interesting and I request you all to watch this video till the end. Why? Because I am going to put up a very challenging task in front of you at the end of my video. So I hope you like it. Yeah. Now moving forward with the first commonly used punctuation, that is full stop. Now many of us don't know that full stop is also known as period. ठीक है, उसका सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया है. फुल स्टॉप सबसे कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन है जिसका यूसेज हमें ऑलमोस्ट पता है. एवरीबडी नोज इट, राइट? सो हिंदी में हम इसको पूर्ण विराम कहते हैं, या और उसका सिंबल थोड़ा सा अलग होता है, वो एक डंडी होती है ना. ओके, सो व्हाट इज इट्स यूसेज? इट इंडिकेट्स द क्लोज ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस. तो हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं. Second usage is it is used in between abbreviations and initials. So, abbreviations का मतलब हुआ short forms. तो अब जब हम कोई बड़ा वर्ड एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल ETC डॉट, है ना? ETC हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेट्रा. तो हम उसके बाद ETC के बाद डॉट लगा देते हैं. वाई? बिकॉज इट इज एन एब्रीविएशन. या so some more examples are here. Mr. and Mrs. Sharma will attend the wedding today. तो ये एक पूरा सेंटेंस है और ये कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 वी हैव MBA, BCom, BTech. तो ये जब हम कोई डिग्री, है ना, या कोई ऐसे वर्ड्स जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं उसके हर लेटर के बाद या उसके एंड में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. तो ये आप कभी भी अपने डेली राइटिंग में इसको नोटिस कर सकते हैं, right? Now moving forward to the second punctuation for today, that is comma. कॉमा भी बहुत यूज़ करते हैं हम, बट कभी कभी हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हम गलत मीनिंग इम्प्लाई कर देते हैं सेंटेंस की, राइट? सो वी हैव टू नो दैट कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज इन वॉइस. ठीक है. तो जैसे कि पिछला एग्जाम्पल मैंने बताया लेट्स ईट मॉम वाला, तो उसमें ईट के बाद एक छोटा सा पॉज के लिए हम कॉमा लगाते हैं, है ना? So first usage it is used between nouns and pronouns in opposition. अब ये opposition क्या होता है? opposition का मतलब होता है एक को डिफाइन करने जाते हैं तो उसी से दूसरे का डेफिनेशन भी आ जाता है. ठीक है. साइड बाय साइड नाउन और प्रोनाउन दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसका मतलब होता है opposition. ठीक है. दूसरा यूसेज है इट इज़ यूज टू सेपरेट टू और मोर वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच.
ठीक है। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के 2-3 वर्ड्स हम अगर लगा दिए साथ में तो उसके बीच में कॉमाज लगते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे आगे। थर्ड, इट इज़ यूज फॉर राइटिंग फिगर्स इन थाउजेंड्स। यह काफ़ी नोटिसेबल है, जब हम बड़ी अमाउंट्स नंबर्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, तो हम 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा लगाते हैं, 2 ज़ीरोज़ के बाद फिर कॉमा लगाते हैं। तो वो इसी की बात कर रहा है कि इट इज़ यूज फॉर राइटिंग फिगर्स इन थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स, राइट। नाउ फोर्थ यूसेज, इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ पर्सनस टाइटल्स और क्वालिफिकेशन। जब किसी इंसान का कोई पद होता है, कोई डेजिग्नेशन होता है ना, उसके क्वालिफिकेशंस होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी दिस। सो एग्जाम्पल 1 आई हैव अटल बिहारी वाजपेयी, ए बी वाजपेयी। देखो अब यहाँ पे फुल स्टॉप का भी यूसेज है, A.B. क्योंकि ये क्या है, एब्रीविएशन है। तो अटल बिहारी वाजपेयी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू अ सिंपल फैमिली। नाउ कॉमा हम A.B. वाजपेयी के बाद नोटिस कर सकते हैं और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद नोटिस कर सकते हैं। तो अभी हमने पिछली लाइन में क्या पढ़ा था, नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन अपोजिशन। तो ये नाउन हो गए A.B. वाजपेयी, उसी से रिलेटेड हुआ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो हमने दोनों के बाद कॉमा लगाया है। यस। एग्जाम्पल नंबर 2, वन शुड लिव अ सिंपल, ऑनेस्ट एंड हेल्दी लाइफ। सिंपल, ऑनेस्ट, हेल्दी क्या हो गया, सेम पार्ट ऑफ द स्पीच। सो दैट्स हमने कॉमा से उनको अलग किया है, ठीक है। और अगर हम इसको देखो कॉमा से नहीं करेंगे अलग तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। वन शुड लिव अ सिंपल, ऑनेस्ट एंड हेल्दी लाइफ, वो बिना कॉमा के बिल्कुल ही अतरंगी लगने वाला है, राइट। नाउ एग्जाम्पल 3, द फर्नीचर कॉस्ट ₹2 लाख, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा, 2 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा, और ये इजीली रीडेबल हो जाता है, राइट। नाउ एग्जाम्पल 4, द स्पीकर फॉर टुडेज सेशन इज डॉक्टर रेड्डी, M.Tech, PhD इन कंप्यूटर साइंस। तो देखो डॉक्टर रेड्डी इज अ पर्सन, इज अ नाउन। उनकी डिग्री, जितनी भी उनके क्वालिफिकेशंस है, उनको हमने कॉमा के थ्रू अलग किया है। सो दिस इज हाउ कॉमा इज यूज्ड। मूविंग ऑन टू थर्ड कॉमनली यूज पंक्चुएशन, दैट इज कोलन। नाउ कोलन का सिंबल ये दिख रहा है, इट्स नॉट अ स्माइली, ऑब्वियसली ब्रैकेट्स हटा दो और जो 2 डॉट्स हैं सिर्फ वही हैं उसका सिंबल, ठीक है। सो ओके, सो कोलन इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन, अ प्रॉब्लम और एन एक्सप्लेनेशन। जब हम अपने कॉलेज के टाइम्स में आंसर्स वगैरह लिखते हैं तो हम कितना कोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जब उसको बताएंगे ना, देन यू विल रिमेंबर इट। So first usage of colon is it is used to introduce an additional remark in explanation or in confirmation of a previous one. तो जब हम कोई भी information दे रहे होते हैं, सपोज कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, अब उसकी कुछ अलग डिटेल्स देनी है तो हम उस कोलन का यूज़ करते हैं। सो किस तरीके से करेंगे, विल सी लेटर ऑन। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन ऑब्वियसली, एंड देन इट इज़ यूज्ड टू न्यूमेरिकल, यूज्ड इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, ठीक है। यूज्ड इन होगा यहाँ पे, ठीक है, यूज्ड इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। तो ये हम देखते हैं, जैसे अगर हम 5:30 लिख रहे हैं तो 5 के बाद हम कोलन लगाते हैं, फिर 30 लिखते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ बाइसिकल आर। देखो अब बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बाइसिकल आर, आर के बाद कॉलन लगा दिया है, क्योंकि अब बेनिफिट्स पे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरीके के बेनिफिट। इट सेव्स टाइम, लेस कॉस्ट एंड इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। देन एग्जाम्पल 2, शी बिलीव्स लिव एंड लेट लिव। तो वो जो कोटेशंस वाला था कि इट इज़ यूज्ड फॉर कोटेशंस, तो शी बिलीव्स लिव एंड लेट लिव, राइट। एग्जाम्पल 3, द टाइमिंग फॉर माई एग्जाम इज 1 PM। तो 1 के बाद हमने कोलन यूज़ किया है। सो दिस इज ऑल about colon. I hope you're enjoying it, and कोई भी doubt है just comment it down. I'm happy, more than happy to answer it. Yeah. Moving on to next punctuation mark, that is semicolon. ठीक है, colon और semicolon, there's a vast difference in both, in symbol as well as in meaning and usage. So semicolon का symbol ये है, colon में दोनों dots थे, semicolon में semi मतलब समझ जाओ आधा, तो आधा डॉट है और आधा कॉमा है, ठीक है। Now it indicates a longer pause than what is indicated by comma. देखो कॉमा और कॉलन, सेमी कॉलन सॉरी, जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे कॉमा यूज़ करूँ, कहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करूँ, राइट। तो एक डिफरेंस यहाँ पे यह निकल के आ जाता है कि इट इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज देन व्हाट इज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। यूसेज देखें तो इट इज़ यूज टू सिग्निफाई अ ब्रेक बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रादर देन ब्रेक इन द सेंटेंसेस। जैसे लेट्स ईट मॉम एक सेंटेंस था,
ठीक है। तो लेट्स ईट के बाद हमने सेमी कॉलन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो एक सेंटेंस है, वो एक सेंटेंस का अलग अलग पार्ट नहीं है, वो एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। एंड इट इज यूज टू सेपरेट लॉन्गर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज विच आर सिमिलर इन थॉट एंड आर नॉट इंटीग्रेटेड बाय द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक बट, येट एक्सेट्रा। तो हम जब नॉर्मल बड़े सेंटेंसेस देखते हैं तो हम कहीं पे कंजंक्शंस यूज हुए देखते हैं, राइट, बट, येट। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे हम बट वगैरह यूज नहीं करना चाहते हैं, so we can just put a semicolon and then continue our sentence, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आर फैक्ट्री हैज मैन्युफैक्चर्ड 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, दे कैन बी डिस्पैच्ड टुमारो। तो ये एक सेंटेंस हुआ, बट यहाँ पे हमने सेमीकॉलन यूज किया। क्यों किया? क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दे कैन बी डिस्पैच टुमारो। और अगर हम इन दोनों को अलग कर दें, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट तक एंड देन इसके बाद ये, तो दोनों आपस में अलग सेंटेंसेज हैं, अलग क्लॉजेज हैं, ये एक ही सेंटेंस का पार्ट नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे हम कॉलन यूज किए, ठीक है। एग्जाम्पल 2, लेट्स गो फॉर अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ, इट विल हेल्प यू इन रिज्यूविनेशन, ठीक है। तो ये भी ट्रिप से रिलेटेड बात हो गई एंड दैट्स वाई हमने इसको कोलन, सेमी कोलन से अलग किया है, ठीक है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन कॉमा एंड सेमी कोलन एंड हाउ इट इज यूज्ड। नाउ मूविंग ऑन टू अदर punctuation mark, sorry, that is question mark. Question mark very common, सबको पता होता है। तो यूसेज क्या है? इट इज़ यूज आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एंड सेकेंडली इट इज़ यूज आफ्टर अ पोलाइट रिक्वेस्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। तो सी द एग्जाम्पल, फर्स्ट इज वेयर डू यू लिव, इट्स अ क्वेश्चन, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, विल यू प्लीज लेंड मी अ बुक, तो दिस इज अ रिक्वेस्ट। जब हम किसी चीज़ को क्वेश्चन के, किसी रिक्वेस्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में बोलते हैं, देन वी यूज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पंक्चुएशन मार्क, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। सो इट इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, और ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी कॉमन होता है, हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं और बेसिकली ये इमोशंस को सिग्निफाई करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल 2, ओह, exclamation mark, we missed our bus today. Example 3, alas, she died. Example 4, wow, how beautiful is this palace. तो जब हम अपनी फीलिंग्स, देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस में भी हमने फीलिंग्स को दर्शाया, ओह वी मिस्ड अ बस टुडे, इसमें भी एक इमोशन है, अलास शी डाइज, इट में एक सैड इमोशन है, वाव हाउ ब्यूटिफुल इज दिस पैलेस, इसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट, सरप्राइजिंग इमोशन है, ठीक है। सो ये सारे इमोशंस के पार्ट हैं, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एक्सक्लेमेटरी साइन। आई होप यू गेट दिस, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पंक्चुएशन, दैट इज कोटेशन मार्क। तो डबल कोट्स जो हम बोलते हैं, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड कॉमास, जिस नाम से अपन जानते हैं इसको। देन यूसेज देखा जाए तो इट इज यूज टू कोट द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन। एक एग्जैक्ट, सपोज हम बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, है ना, इसने एक मार्केटिंग की डेफिनेशन जारी की हुई है, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट हम कहीं पे लिखते हैं अगर, तो हम उसको किस में डालते हैं? कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और जब हम इसको डालते हैं तो इसका मतलब हम वहाँ से एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। किसी ने कुछ कोट, फेमस पर्सन्स कितने सारे कोट्स बोलते हैं, कोट्स उन्होंने लिखे हैं, तो वो कोट्स हम कहीं पे डालते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालते हैं, राइट। सेकेंड इज इट इज़ यूज टू इनक्लोज टाइटल्स ऑफ आर्टिकल्स, करेक्टर्स ऑफ बुक्स, टाइटल्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो ऑब्वियसली जब किसी आर्टिकल को, किसी जर्नल को, किसी बुक के करेक्टर को हम कहीं पे लिखते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, सो दैट वो हाईलाइटेड दिखे थोड़ा सा, है ना। Then thirdly, it is used around a term to clarify its meaning or to show that it is being used in a special way. तो obviously यही एग्जाम्पल फिर से बताऊंगी कि जब हम एग्जामिनेशन में अपना आंसर शीट लिखते हैं तो हम कुछ कुछ चीज़ों को इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, बोल्ड में लिखते हैं, कैपिटल्स में लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? टू शो दैट इट हैज़ सम स्पेशल रिलेवेंस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट की वर्ड, तो इसलिए हम कोटेशन मार्क्स को यूज़ करते हैं।
Moving on to examples, Don Welch once said, exploration is curiosity put into action. अब ये इनके वर्ड्स हैं, ठीक, इनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, दैट्स वाई ये इन्वर्टेड कॉमास में है. एग्जाम्पल 2, रीड द आर्टिकल एंटाइटल क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स. तो क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स एक आर्टिकल का नाम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक थिंग का नाम है ना, स्पेसिफिक चीज़ को मैं टारगेट कर रही हूँ, दैट्स वाई मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. एग्जाम्पल 3, द जॉब टाइटल चेंज फ्रॉम डायरेक्टर टू CEO. अब डायरेक्टर में और CEO में इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों लगा है? क्योंकि हम इन पर्टिकुलर वर्ड्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं एक स्पेशल तरीके से कि जो पोस्ट इनकी थी, जो डेजिग्नेशन इनका इस कंपनी में था, वो डायरेक्टर से चेंज होकर CEO में पहुंच गया है, प्रमोशन हो गया भाई. तो इस तरीके से हम इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज़ करते हैं. मूविंग ऑन टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंक्चुएशन मार्क, दैट इज अपॉस्ट्रॉफी. तो अपॉस्ट्रॉफी इज यूज टू शो पोजेशन ऑफ नाउन और ऑब्जेक्टिव. ये हमें पता है कि पोजेशन शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं. इट इज इंसर्टेड टू शो दैट सम लेटर और लेटर्स हैव बीन ओमिटेड. जब हम कुछ लेटर्स को बीच में से ओमिट कर देते हैं तब भी हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं. किस तरीके से करते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आई विल शो यू. थर्ड इज इट इज यूज टू फॉर्म प्लूरल्स. ओके फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल्स. माई अकाउंटेंट्स फी. अकाउंटेंट के बाद मैंने अपॉस्ट्रॉफी लगाई है. मेरे अकाउंटेंट की फी, तो सिंगुलर नाउन, अकाउंटेंट, टी के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगी है, इसे सिंगुलर नाउन. आर अकाउंटेंट्स फी, एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगी है, इसका मतलब प्लूरल नाउन, बहुत सारे अकाउंटेंट्स, ठीक है. नाउ एग्जाम्पल 2, डजंट हम यूज करते हैं, तो यहाँ से ओ क्या है, ओमिटेड है, तो इसका पूरा वो स्पेलिंग क्या होता है, डज नॉट, और डज नॉट को हम पूरा ना लिख के डजंट लिख देते हैं और एन के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं. आइल फॉर आई विल, और डब्लू और आई को हम हटा देते हैं और यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा के सिर्फ डबल एल लिखते हैं. तो ऐसे वर्ड्स हम काफ़ी सारे यूज़ करते हैं और इन केसेस में अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ होता है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इज द बॉयज PhDs. तो बॉयज इज अ प्लूरल एंड PhDs, तो PhD को भी हमने अपॉस्ट्रॉफी से डी के बाद लगाया है, ठीक है. सो दिस इज हाउ अपॉस्ट्रॉफी वर्क्स एंड we have reached the end of the last punctuation, right, for today. So now it's time for telling you the challenging task. तो आज का चैलेंजिंग टास्क ये है कि इन सारे पंक्चुएशन मार्क्स जो अभी हमने डिस्कस किए उनको यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ बनाना है, छोटा सा 5-6 लाइन का, एंड यू हैव टू यूज़ ऑल दीज पंक्चुएशन डिस्कस्ड, ठीक है. तो इसको आप कमेंट डाउन करिए, जो भी आपने पैराग्राफ छोटा बनाया है, ठीक है, स्वीट एंड सिंपल सा, and I'll see that, and if I like it then I'll obviously comment back to it. So yeah, do this task. I hope you will learn more, and thank you for watching my video. If you like this video then please like, share and subscribe, and happy learning. Take care. See you in the next video.